So students, today we are starting with a fresh chapter of your 12th class, that is called coordination compounds. Coordination compounds or coordination complexes. So let us study this chapter. This is a new chapter. It is actually based on D and F block elements. So before you go into the details of this chapter, you should know some basics of the D block and the F block elements. But as you are already aware of D and F block, you studied it in periodic properties in 11th class. You know what are D block, what are F block elements. So we can directly start with the chapter coordination complexes. Okay. Now this is a new category of compounds. Coordination compounds is a totally different kind of compound. Initially when these compounds were discovered, when they were used, they used to be confused, scientists used to get confused with double salt. You must have studied, there is a word called double salt. Now in your lab, when you are doing experiments, there is an experiment to prepare double salt in the lab, and in that experiment you are making ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate is a double salt. ओके ये एक डबल सॉल्ट है, आपको लैब में बनाने को बोलते हैं, इसको मोहर सॉल्ट भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड मोहर salt. You are in 12th class practicals, you are asked to make this salt. How do we make a double salt? We mix ferrous sulfate in water, make a solution. We mix ammonium sulfate in water, make another solution. Mix the two solutions, thoroughly stir, evaporate the water. When you evaporate water from the solution of ferrous sulfate and ammonium sulfate, you get green crystals remaining at the end in the solid form after evaporation of water, and those solid crystals are of ferrous ammonium sulfate, which is a combination salt of ferrous sulfate and ammonium sulfate. Now what is the formula of this salt? See, this is FeSO4 and ammonium sulfate is NH4 twice SO4. ये अलग अलग फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है. बट जब हम कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पहले सारे केटायंस FeNH4 twice SO4 twice, मतलब एक SO4 इसका और एक SO4 इसका 2 times. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेरस अमोनियम सल्फेट. Now whatever I am talking is not a coordination compound, it is a double salt. लेकिन double salt फॉर्मूला में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे दिखते हैं. तो इनिशियली जब वो डिस्कवर हुए थे तो साइंटिस्ट उनको भी डबल सॉल्ट समझते थे. मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज K4FeCN6. दिस इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये डबल सॉल्ट जैसा क्यों है दिखने में? क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों में? इसमें भी दो केटायन है, एक फेरस एक अमोनियम. इसमें भी दो केटायन है, एक पोटेशियम एक आयरन फेरस. इसमें सल्फेट एनायन है, इसमें साइनाइड एनायन है. मतलब फॉर्मूला में ये एक्चुअली ऐसा भी कह सकते हो आप कि 4 KCN और एक FeCN ट्वाइस अगर मिल जाए तो ये फॉर्मूला बनेगा. K4 Fe1 और इसके 4 CN, इसके 2 और इसके 4 CN मिला के 6 CN. मतलब आप इसको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ डबल सॉल्ट कह सकते हो, लेकिन ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करो और आप इसको भी पानी में डिसॉल्व करो तो द काइंड ऑफ आयंस दैट आर फॉर्म्ड आर डिफरेंट. In case of double salt, every ion is free. You get a ferrous ion, you get 2 ammonium ions, you get 2 sulfate ions. ये सब लिबरेट हो जाएंगे. एक फेरस बनेगा, ठीक है, और FeSO4 में से एक फेरस बनेगा, अमोनिया के 2 आयंस बनेंगे, सल्फेट के 2 आयंस बनेंगे. ये तब होगा जब आप एक डबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो.
बट जैसे ही आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो द थिंग इज ये जो पोर्शन है ये डिसोसिएट ही नहीं होता, ये आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होता, सिर्फ ये जो K4 है ये 4 पोटेशियम आयंस बन के बाहर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा FeCN6 विद अ चार्ज ऑफ 4 नेगेटिव stays united. It does not ionize, it does not dissociate into ions in solution. Okay, so this is a coordination compound. In formula though they look similar, they are not similar. So what is dissimilarity between a double salt and a coordination compound? मतलब हम इसको एक अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड समझ के क्यों पढ़ने लग गए, क्या डिसिमिलैरिटी थी इसमें और डबल सॉल्ट में, जबकि फॉर्मूला में वो एक जैसे दिख रहे थे. द डिसिमिलैरिटी इज in a double salt there is only ionic bond, all the cations or anions are bonded through ionic bond. So as soon as you put them in a polar solvent like water, they all ionize into cations and anions. But when it is a coordination compound, then only that part dissociate which is made up of is bonded through ionic bond, but between these two species there is a coordinate bond. And you know coordinate bond is a kind of covalent bond जो sharing से बनता है, sharing of pair of electron where the pair comes from the single atom, not from both the atoms. Coordinate bond is a type of covalent bond. So what has been observed that in case of coordination compound there are some ionic bonds but there are coordinate bonds also, and because the coordinate bond between Fe and Cn does not ionize, therefore as it is not ionizing in water they keep in association and you get a complex ion. इसको आप क्या बोलोगे, इस पूरे स्पीशीज के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन है, तो ये किस टाइप का एनायन है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन. You get a normal cation potassium and you get a complex anion. Okay, so when a coordination compound is there, it will, when it ionizes in water, it produces simple ions along with complex ions. सिंपल आयन अगर केटायन है तो कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा, सिंपल आयन अगर एनायन है तो जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो केटायन होगा. सो दिस हैपन्स. ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दिस इज एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली क्या है आगे के डिस्कशन में हम और देखते हैं. आपको मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दे दिया, अभी थोड़ा सा और डिटेल में उसको स्टडी करते हैं. So whenever you make a coordination compound, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक चीज नोटिस करनी है, याद रखनी है कि जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं. दिस इज अ रूल, लाइक यू राइट NaCl, Na फर्स्ट एंड Cl लेटर. नाम लिखते वक्त भी पहले सोडियम फिर क्लोराइड. सो दिस इज द रूल, फर्स्ट कैटायन देन एनायन इन द फॉर्मूला एज वेल एज इन द नेम. ओके, ये चीज यहाँ भी फॉलो होती है. अभी जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक हम स्क्वायर ब्रैकेट के सामने या पीछे ऐसे लिखेंगे. समझ में आ रहा है आपको? जब भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सामने और पीछे जो भी प्रेजेंट है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर. ये भी आयोनाइजेशन स्फीयर. अब 2 क्यों है, दोनों में नहीं होंगे आयंस. अब हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बाहर एनायंस चाहिए. तो एनायंस होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे. और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर खुद नेगेटिवली चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर आपको केटायंस चाहिए. तो अगर केटायन होंगे तो नाम तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले आएंगे, बिकॉज द रूल इज द सेम, फर्स्ट केटायन देन एनायन. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर खुद केटायन है तो पहले वो आएगा, पीछे एनायन लिखेंगे. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है तो उसके सामने कोई केटायन आएगा. ठीक है, तो दिस इज द असेंबली ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाउ इट इज रिटन.
So whatever is inside the square bracket, we said it is coordination sphere. And what the coordination sphere it is made up of two parts. It is made up of what is called as a central metal ion. उसके दो पार्ट्स होंगे, उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होगा. This will be only one most of the time. There are very exceptional cases, जब वो आएगा मैं बताऊंगी, but usually central metal ion is one. लेकिन ये दूसरा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं लिगैंड, these are ligands which can be many. लिगैंड्स एक से ज्यादा होंगे यूजुअली, बहुत कम बार एक लिगैंड होता है, यूजुअली बहुत सारे होंगे. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगैंड्स दैट कैन एग्जिस्ट इज 6. 6 लिगैंड हो सकते हैं, 6 के ऊपर अभी तक नहीं मिले. 1 2 3 4 5 6 कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगैंड दैट्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ब्रेकिंग, यानी उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होगा जो यूजुअली एक ही होगा, और जो लिगैंड होंगे वो बहुत सारे होंगे. ठीक है, तो जो हमारा एक एग्जाम्पल था, एक बार हम उससे एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ. हमने एक एग्जाम्पल लिखा था K4FeCN6. अब ये जो K4FeCN6 हमने लिखा था, इसमें ये कैटायन है पोटेशियम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन है Fe, और जो लिगैंड है वो है साइनाइड. Fe एक ही है, साइनाइड आयंस 6 है. देयर आर 6 ligands present in this particular complex. Okay, there is more to know about it. Now these coordination compounds fall in two categories, 3 categories rather, types of complexes. So there are 3 types of complexes. One is called cationic complex. Cationic complex. So as the name suggests, हम cationic complex किसको कहेंगे? That coordination compound where the complex ion, अब आपको पता है complex ion क्या है, जो square bracket के अंदर है. That coordination compound where the complex ion carries positive charge. अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कहेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ. सपोज आई राइट वन फॉर यू. इट इज क्रोमियम. This is an example of a coordination compound where the square bracket carries a positive charge. अब हमें कैसे पता चलता है स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज, वो मैं आपको टाइम के साथ सिखाऊंगी. बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि क्योंकि इसके पीछे 3 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है. व्हाट इज द चार्ज ऑन क्लोराइड आयंस? -1. 3 क्लोराइड आयंस विल कैरी व्हाट चार्ज? -3. सो व्हाट मस्ट बी द चार्ज ऑन दिस स्क्वायर ब्रैकेट? +3, because the whole complex has to be electrically neutral. So if this is -3, then here it is +3. तो क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +3 चार्ज है तो हम इसको कहेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स. मतलब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इसको पानी में अगर आप डिसॉल्व करो, यू विल हैव 3 नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस एंड अ क्रोमियम NH3 6 times with a +3 चार्ज, एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स केटायन. इसलिए ये हमारा किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल हुआ? एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स. ओके, then there is another type, then you understand it should be anionic complex. Anionic complex का definition आप खुद भी easily बोल सकते हो. It is that coordination compound where the complex ion carries a negative charge. और एग्जांपल हमने अभी लिखा था K4FeCN6, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. लास्ट कैटेगरी इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ऐसा भी होगा कभी कभी कि न्यूट्रल होगा पूरा कॉम्प्लेक्स, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज दैट वेयर देयर इज नो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन और द कॉम्प्लेक्स आयन इज न्यूट्रल. ओके, मतलब ऐसा कब होगा? जब आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं होगा, ना तो सामने कैटायन ना पीछे एनायन, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट. अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख रही हूं,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. क्रोमियम है सेंट्रल मेटल आयन, क्लोराइड लिगैंड, ये दोनों लिगैंड्स है. मैंने आपसे कहा था लिगैंड में नहीं हो सकते, ये दोनों लिगैंड है. Cl लिगैंड 3 है, अमोनिया लिगैंड भी 3 है, और द स्क्वायर ब्रैकेट का टोटल चार्ज 0 है. क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि क्रोमियम +3 चार्ज वाला है और 3 क्लोराइड मतलब -3. अमोनिया पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए टोटल स्क्वायर ब्रैकेट पे 0 चार्ज है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस: cationic, anionic and neutral. Okay, and how is this division done? On the basis of the charge present on the square bracket, जिसको हम कहते हैं coordination sphere. coordination sphere पे क्या charge है? If the coordination sphere is positive, cationic complex. If the coordination sphere is negative, anionic complex. If the coordination sphere is chargeless, then it is called a neutral complex. Okay, I hope you got it. Okay, we have to now go into the details of what is called as ligand, क्योंकि वो हमारे लिए एक नई चीज है, तो हमें ligand के बारे में ज्यादा जानना है. Okay, so the next topic is ligand. Ligand. By definition, how do we define ligand? Okay, ligand is an anion or a negatively charged, sorry, not negatively charged, an anion or an electron rich molecule. So what is definition of ligand? Either it is an anion, मतलब या तो वो ligand anion हो जाए जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पर वो इलेक्ट्रॉन रिच है जिसपे लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट. सो अ लिगैंड इज आइदर एन एनायन और एन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल which is capable of donating lone pair of electrons. This is the definition of ligand. Ligand is that molecule or that anion which is capable of donating one or more lone pair of electrons. Okay, that is called a ligand. Ligand के different types है, तो अब हम लिख लेते हैं types of ligand. पहला type. Okay, first type of ligand. First type of ligand is called a monodentate. Or some books call it unidentate. आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड. नाम से ही समझ में आ रहा है, हम मोनो और यूनी ये वर्ड यूज करते हैं फॉर वन. ओके, so monodentate or unidentate ligand is capable of donating just one lone pair of electron. मतलब एक ऐसा लिगैंड जो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऐसे लिगैंड को हम कहेंगे यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगैंड. इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं. डेफिनेशन सिंपल है, आप अपने कॉपी में नोट कर लो. ऑल दोज लिगैंड्स व्हिच कैन डोनेट जस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एग्जांपल सारे हैलाइड्स, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, फिर बाकी क्या आयन, साइनाइड आयन, देन वी हैव द ये सारे एनायंस पहले हमने ले लिए. ये सब मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं. कुछ मॉलिक्यूल भी हैं जो मोनोडेंटेट लिगैंड है. हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. वाटर, H2O, देन वी हैव वन मोर अमोनिया. इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. वी हैव वन मोर एग्जांपल, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, इसको हम कहते हैं पिरिडीन. पिरिडीन इज आल्सो हैविंग अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, वो भी एक मोनोडेंटेट लिगैंड है. एग्जांपल्स तो बाद में हम सब जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब और आएंगे. ये कॉमनली नोन मोनोडेंटेट लिगैंड्स है जिसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है देने के लिए. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. The second category is bidentate ligand. Bidentate
लिगैंड। इसको भी किसी किसी बुक में मैंने नोटिस किया, कुछ ओल्ड बुक्स है जो बाइडेंटेट को डाइडेंटेट वर्ड भी यूज कर रही है। तो दे यू अंडरस्टैंड बाय एंड डाई मीन्स टू, ओके। सो बाइडेंटेट लिगैंड इज दैट लिगैंड which is capable of donating two lone pair of electrons, ठीक है। एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास दो एटम्स हैं ऐसे जो लोन पेयर डोनेट कर सकते, एक ही एटम दो नहीं दे सकता, उसके क्या लिमिटेशंस है हम बाद में देखेंगे। अ बाइडेंटेट लिगैंड कंटेन्स टू सच एटम्स विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो दो लोन पेयर दे सकता है, हम ऐसा कहें कि a bidentate ligand contain two such atoms which can give lone pair of electrons, okay। Example, the best example which you will be coming across maximum times is ethylene diamine। ethylene मतलब CH2CH2 और diamine मतलब दो NH2, ये दोनों N के ऊपर लोन पेयर। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत बार, इसको शॉर्ट में एज लिगेंड EN लिखते हैं, EN इज इथिलीन डायमीन, ओके। बहुत बार आपको ये एग्जांपल्स में आएगा। और ये क्यों बाइडेंटेट है, क्योंकि इसके पास दो N है जिसके ऊपर लोन पेयर है, दोनों डोनेट किए जा सकते हैं। सो इथिलीन फॉर CH2CH2 and NH2NH2 is diamine, okay। I'll give you one more example. You tell me which acid is it। पहले एसिड का नाम लिख लो, फिर उसको लिगैंड बताऊंगी। आई थिंक यू नो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। अगर ये ऑक्सैलिक एसिड आयोनाइज्ड फॉर्म में हो तो ये दोनों H लिबरेट होके दोनों पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर, ये है ऑक्सलेट आयन जिसको शॉर्ट में OX ऐसे लिखते हैं लिगैंड फॉर्म में। और ऑक्सलेट आयन इज ऑल्सो अ बाइडेंटेट लिगैंड बिकॉज एट दीज टू प्लेसेस इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी दे दिया और एक आयन का भी एग्जांपल दे दिया। तो ये हो गया हमारा बाइडेंटेट लिगैंड, ओके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगैंड इज ट्राइडेंटेट लिगैंड। As the name suggests, this ligand will contain three such atoms which are capable of giving one lone pair of electron. So the example is, say I am writing the structure, you will be able to name it. See this. In this structure there are three nitrogens which are capable of giving lone pair. And how do we name this compound? It is diethylene triamine. Diethylene triamine. So this is the best example of a tridentate ligand. There are more. We'll have a separate table of ligands where I'll give you some more examples, okay. Next category is tetradentate ligand. Tetradentate are capable of giving 4 lone pairs because they will contain 4 such atoms. नाम ही बता रहे हो, आप स्ट्रक्चर बना लेना। इसी स्ट्रक्चर में एक इथिलीन ग्रुप और ऐड कर लो और एक NH और ऐड कर लो, मतलब हो जाएगा ट्राइथिलीन टेट्रामीन। ट्राइथिलीन टेट्रामीन। लेकिन पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर से मैं आपको पेंटाडेंटेट बताऊंगी। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी इज 6, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसी में मैं आपको पेंटाडेंटेट का भी एग्जांपल दिखा दूंगी, इसलिए मैं हेक्सा पे डायरेक्टली जा रही हूँ। हेक्साडेंटेट लिगेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फॉर सो मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। आपको बहुत जगह हेक्साडेंटेट लिगैंड हम यूज कर रहे हैं अननोइंगली, आपको पता नहीं होगा कि आप उसको यूज कर रहे हो। तो मैं आपको पहले एक हेक्साडेंटेट लिगैंड बता देती हूँ। डेफिनेशन इज द सेम। This particular ligand will have 6 such atoms which can donate lone pair of electrons, okay. I'll first name it. Its short name is EDTA. EDTA शॉर्ट में उसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन
इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। टेट्रा एसिटिक एसिड लिखे तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म होगा, पर जब लिगैंड फॉर्म है तो टेट्रा एसिटेट है। ओके, तो इसको हम कहते हैं EDTA, बहुत कॉमनली यूज्ड है। दिस पर्टिकुलर लिगैंड हैज गॉट हाई कैपेसिटी टू बाइंड टू द मेटल आयंस। EDTA आप नॉर्मली जब आगे यूज करोगे कभी, इट विल बी यूज इन द रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, बिकॉज ये मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस को भी स्ट्रांगली बाइंड करके हार्ड वाटर में से निकाल देता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर नाम से ही बन जाएगा, अगर आप नाम ठीक से देखो, बुक में जब बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं ना EDTA के, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से दिखते हैं, लेकिन जब नाम को फॉलो करके आप बनाओगे तो आप इजीली बना लोगे। इथिलीन डायमीन, व्हाट इज इथिलीन? इथिलीन वाज CH2CH2 एंड व्हाट वाज इथिलीन डायमीन? दोनों तरफ एक एक NH2। ये तो हो गया इथिलीन डायमीन। अब आगे वो कह रहे हैं टेट्रा एसिटेट, मतलब 4 एसिटेट ग्रुप। देखो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटेट होने के लिए ये CO-, इस ग्रुप को 4 टेट्रा एसिटेट, मतलब ऐसे 4 ग्रुप इसमें अटैच करने। कहाँ पे? ये चारों हाइड्रोजन की जगह पे, मतलब 2 इस कार्बन पे और 2 इस कार्बन, ऐसे 4। अब जब ये ग्रुप यहाँ अटैच होने आएगा तो इसके पास एक फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। ये आयन नहीं, यहाँ फ्री वैलेंसी, मतलब एक H कम। तो कैसे अटैच करेंगे यहाँ पे हम? CH2 COO-, CH2 COO-, CH2 COO-, CH2 COO-। ये हो गया EDTA का स्ट्रक्चर। आप देखो किसी बुक को खोल के, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है वो स्ट्रक्चर, तो ऐसे लगता है हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन ये नाम से बन जाएगा। पहले आप इथिलीन डायमीन बना लो, फिर चारों हाइड्रोजन को एसिटेट ग्रुप से रिप्लेस कर लो। अब ये क्यों हेक्साडेंटेट लिगैंड है? ये जो नाइट्रोजन है ये तो लोन पेयर देंगे, 2 हो गए, फिर ये जो 4 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये चारों भी डोनर्स है, तो टोटल डोनेटिंग एटम्स हो गए 6। देयरफॉर EDTA इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगैंड। ठीक है, अब मैंने कहा था इसी में पेंटाडेंटेट आएगा, तो पेंटाडेंटेट में और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर यहाँ टेट्रा की जगह ट्राई कर दे, इथिलीन डायमीन ट्राई एसिटेट, तो वो एक पेंटाडेंटेट लिगैंड है। मतलब क्या होगा कि एक ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ही रहेगा, सिर्फ 3 जगह एसिटेट आया, तो अब ये पेंटाडेंटेट का एग्जांपल है। दिस इज आल्सो वेरी मच यूज्ड एक्सटेंसिवली। ओके, सो वी हैव डन अप टू हेक्साडेंटेट, बट देयर आर मोर टाइप्स। डेंटिसिटी तो 6 ही है मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोन पेयर देने वाला कोई लिगैंड नहीं होता। तो ये तो हो गया, लेकिन और टाइप्स और है लिगैंड के। एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगैंड। Now what is meaning of the word ambidentate? You know, am word आपने बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में भी am word हम यूजुअली यूज कर रहे हैं when 2 things are possible simultaneously, either this or that। मतलब जैसे amphibians can live on land, can live in water, amphoteric can act as acid, can act as base। मतलब जब possibilities 2 हो, either this or that, then we use the word am। वैसे ही ambidentate ligands are those ligands which have 2 such atoms which can donate lone pair of electrons, but only one donates at a time। ऐसे ही है ना कि अगर एम्फोटेरिक बोल रहे हैं तो या तो एसिड जैसा एक जगह एक्ट करेगा तो बेस जैसा करेगा, एक ही टाइम पे दोनों नहीं कर सकता। जब हम एम्फीबियन बोलते हैं या तो पानी में रह रहा होगा या लैंड पे रह रहा होगा, एक ही टाइम पे पानी और लैंड में नहीं हो सकता। सिमिलरली जब हम एम्बीडेंटेट कहते हैं, इट कंटेन्स 2 such atoms which can give lone pair of electrons, but only one will give at a time। Okay, so the example is cyanide ligand, जो आइसोसाइनाइड भी हो सकता है।
मतलब अगर कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो साइनाइड, बट अगर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड। तो इसका मतलब एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे आपने लिखा था K4FeCN6, तो एक और हो सकता है K4FeNC6। तो ये दोनों में लिगैंड अलग अलग होगा, एक में साइनाइड लिगैंड है, एक में आइसोसाइनाइड लिगैंड है। और एग्जांपल है NO2 और ONO, मतलब है दोनों NO2 बट इसमें N डोनर है, इसमें O डोनर है। और है थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये सब एम्बिडेंटेट के लिगैंड के टाइप्स है। ओके, द लास्ट टाइप ऑफ लिगैंड वी डू नाउ, the last type of ligand is chelating ligand, chelating ligand, बहुत important word है chelating। now from where this word chelating ligand has come, let's find out। there is a word in Latin which is called chalice, and chalice means ring। तो वो सारे लिगैंड्स जो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो ओपन नहीं है, रिंग है, क्लोज रिंग, तो ऐसे लिगैंड्स को हम बोलेंगे चिलेटिंग लिगैंड। सो दोज लिगैंड्स विच फॉर्म साइक्लिक और रिंग कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगैंड्स। ठीक है, अब साइक्लिक और रिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब है कि जो लिगैंड है वो या तो बाइडेंटेट होना चाहिए, या ट्राइडेंटेट, या टेट्रा, या हेक्सा। मोनोडेंटेट क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। तो क्लोज रिंग बनने के लिए डेंटिसिटी शुड बी मोर देन 1। सबसे ज्यादा चिलेटिंग कौन होगा, जैसे हेक्साडेंटेट, EDTA इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्गेस्ट चिलेटिंग लिगैंड, क्योंकि जब कोई मेटल उससे अटैच हो जाता है तो वो पूरे एक रिंग के अंदर अटैच हो जाता है, वो इजीली उसमें से निकल नहीं सकता। व्हाट डज इट मीन, सपोज यहाँ पे एक Fe एटम है और वो EDTA से अटैच्ड है। EDTA से अटैच्ड है मतलब सब तरफ से 6 एटम उसको बाइंड हो गए। एक तरफ से EDTA के 4 ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज थे, ठीक है, और 2 तरफ से वो NH2 ग्रुप EDTA में जो प्रेजेंट थे ये भी बाइंड हो गए, और ये सब जुड़ गए, और ये सब आपस में जुड़े हैं। आपको पता है ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये खुले नहीं है, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल EDTA। तो Fe बीच में रह गया और चारों, मतलब जैसे EDTA को 6 आर्म्स हैं और उसने सब आर्म से Fe को पकड़ लिया, तो दिस इज अ कंप्लीट रिंग कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरी स्टेबल। So chelates are stable coordination complexes, and those ligands which form chelates are called chelating ligands. So we covered almost every kind of ligand that is in this chapter. Okay.